Hello friends, today we are discuss to on embryo development. After the formation of the zygote, it undergo the process of mitotic division and it form a clusters of cell and it form an embryo. So here in this embryo development, we are going to discuss on dicots embryo development. Here the dicot example is the shepherd's purse, capsella, and onagrade type और क्रूसीफर टाइप डाइकोट्स के अंदर हम लोग स्टडी कर रहे हैं. तो एज यू सीन इन दिस वन जाइगोट, ये जो जाइगोट दिखाई दे रहा है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू अनइक्वल ट्रांसवर्स डिवीजन. Due to the unequal transverse division, it form a two cell which is having a unequal size. One cell is larger in size and the other is a small inner size. This kind of the division of the cell is known as the meroblastic division. Here, the two cells are formed. With the large size cells is known as the suspensor cell, and the small size cell that is known as the embryonal cell. From the suspensor cells, it divide many times mitotically and it form a suspensor, and embryonal cells which is divide many times and it form the embryo. So let us see how these cells are formed. Individually, we are seeing the first, we are taking a suspensor cell which is undergo the transverse division, and by the transverse division 6 to 10 time it divide and it form a long rod shaped structure. The uppermost cell, that is known as the hysteria cell or vesicular cell. And why the name is hysteria cell? Because it absorbs the nourishment or nutrient and it is supplied to the embryo, and that's why it is known as the hysterial cell. So the hysteria cell, it is remain at the micropyle end, and the hypophysis, the last cells of the suspensor which is remain in contact with the embryo, that is known as the hypophysis. Again I am going to repeat: the zygote that divide unequally and transversely. By this means that form two cells. One cell is a larger one and known as a suspensor cell. दूसरा cell size में छोटा है, that is known as the embryonal cell. सस्पेंसर सेल्स 6 to 10 टाइम ट्रांसवर्सली डिवाइड होगा, जिससे रॉड शेप एक सेल का स्ट्रक्चर्ड फॉर्म होगा, जिसमें जो माइक्रोपाइलर एंड थ्रू सेल है उसको हम लोग हिस्टोरियल सेल्स बोलेंगे और वेसिकुलर सेल्स बोलेंगे. देयर फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट and they are passing to the embryo. So the cell of the suspensor which is remain in contact with the embryo, that is a hypophysis. Chalo, next one. What's the functions of this hypophysis? Later on, after the development or during the phase of the development, ये जो hypophysis है, it is convert into the radical cap. As you know, जो रेडिकल होता है, जो फ्यूचर रूट सिस्टम को फॉर्म करने वाला है, इट नीड्स सम प्रोटेक्टिव कैप लाइक स्ट्रक्चर एंड दैट इज प्रोवाइडिंग बाय दिस hypophysis. Okay, chalo, see this one. Here it is showing that the cells which is remain micropylar end के साथ हिस्टोरियल सेल है, चलजा एंड के पास जो है वो हाइपोफाइसिस सेल है, जिसके साथ जो सेल कंटेक्ट में है दैट इज़ एम्ब्रियोनल सेल है. यहाँ पे दे प्रोवाइड अ नरिशमेंट. This nutrition is provided by a suspensor to embryonal cell as a hostorial cell and absorb the nutrient and send them to the embryonal cell. द सस्पेंसर सेल्स डेवलपमेंट, मतलब जैसे ही सस्पेंसर सेल का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, ऐसे ही एम्ब्रियोनल सेल का डेवलपमेंट है वो प्रोसीड होगा. दैट इज शोइंग व्हाट फर्स्ट दिस सस्पेंसर्स इज कम्प्लीटली मैच्योर डेवलप and now it is ready to function by absorbing nutrient and it is passing to the embryonal cells. जस्ट बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सस्पेंसर, ये सस्पेंसर सेल है 6 to 10 टाइम ट्रांसवर्सली जब डिवाइड हो गए, जिसकी वजह से जो एम्ब्रियोनल सेल है दैट इज़ पुश डाउनवर्ड. डाउनवर्ड में आपको पता है ऑलरेडी वहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है जो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट को अपने पास लेके बैठा हुआ है.
तो जिससे ये जो एम्ब्रियोनल सेल है उसको डाउनवर्ड, जहाँ पे एंडोस्पर्म है उसके नज़दीक में लाएगा। सस्पेंसर का डिवीजन का मेन फंक्शन ये है। स्टार्टिंग ऑफ द टाइम में वो हिस्टोरिया थ्रू न्यूट्रिएंट को सबको एब्जॉर्ब करेगा, एंड द रेस्ट टाइम में ये जैसे जैसे डिवाइड होता जाता है ये एम्ब्रियो सेल को एंडोस्पर्म के नज़दीक लेके जाएगा। एंडोस्पर्म का भी फंक्शन ये है, ग्रोविंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट पहुंचाना, राइट। चलो, सो दिस काइंड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सस्पेंसर दैट इज नॉन एज द एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट, राइट। चलो, अभी हम लोग देखेंगे जो छोटा सेल जाइगोट का बना था, जिसको हम लोगों ने एम्ब्रियोनल सेल बोला, वो एम्ब्रियोनल सेल है, दैट इज हाउ डिवाइडेड and how it is formed into the multicellular embryo. So this embryonal cell, it is divided vertically 2 times, जिससे वो 4 सेल फॉर्म करेगा, ओके। और फिर से वो डिवाइड होके ये जो 4 सेल है वो 8 सेल कंडीशन में कन्वर्ट होगा बाय ट्रांसवर्स डिवीजन। 2 सेल कंडीशन है वो टेट्राड, 4 सेल कंडीशन है वो फिर से डिवाइड होके ऑक्टेंट मतलब 8 सेल कंडीशन को फॉर्म करेगा, जिससे इट फॉर्म अ 2 टायर, ओके। और जो टॉप 4 मतलब 8 सेल है, तो टॉप 4 सेल है उसको हम लोग हाइपोबेजल्स बोलेंगे और हाइपोबेजल टायर बोलेंगे, जिसमें से हाइपोकॉटिल है दैट इज गोइंग टू बी डेवलप। एज यू नो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो सीड है, ओके, तो सीड में ये जो सेंट्रल एरिया है इसको एम्ब्रियोनिक एक्सिस बोलेंगे, और दोनों साइड बाय साइड है दैट इज अ कॉटिलेडन, ओके। सो अपर मोस्ट पार्ट above the cotyledon that form the plumules, and the lower most part below the cotyledon that form the radicals, okay। So एपिकॉटिल मतलब एम्ब्रियोनिक एक्सिस और प्लूम्यूल के बीच का जो गैप है दैट इज नोन एज द एपिकॉटिल, एंड एम्ब्रियोनिक एक्सिस एंड रेडिकल के बीच का जो गैप है दैट इज नोन एज द हाइपोकॉटिल, ओके। एंड जो सेंटर एक्सिस और एम्ब्रियोनल एक्सिस की मैंने बात करी है दैट इज नोन एज द टिगैलम, ओके। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो 4 सेल्स हाइपोबेजल है इट इज़ फर्दरली डेवलप इनटू हाइपोकॉटिल, और यहाँ पे दिखाया है कि ये एपिबेजल में से क्या क्या फॉर्म्ड होगा, प्लूम्यूल होगा, एपिकोटिल होगा एंड कोटिलेडोन होगा डेवलप, ओके। चलो, यहाँ पे 8 सेल्स है दैट स्टेज अंडरगो द मैनी पेरिक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लाइनल डिवीजन मतलब ये कैसे डिवाइड हो गए, ट्रांसवर्सली जो पहले स्टार्टिंग में डिवाइड होते थे ऐसे ही वो फिर से डिवाइड होंगे आउटर और इनर। पेरिक्लाइनली का मतलब है वो ऐसे डिवाइड होंगे जैसे आउटर और इनर में 2 टाइप्स के लेयर्ड है वो फॉर्म होंगे। सो इट डिवाइड पेरिक्लाइनली एंड इट फॉर्म ग्रुप ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे जो स्टेज दिखाया है दिस स्टेज इज़ नॉन एज द ग्लोबुलर स्टेज, जहाँ पे जो सेंटर में दिखाया है कि जो सेंटर वाली एरिया है जो जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम एंड ग्राउंड टिश्यूज़ वगैरह बनाएगी, ग्राउंड टिश्यू लाइक कॉर्टेक्स एंड पिथ को फॉर्म करेगी, और जो पेरीफेरी का लेयर है वो डर्मेटोजन को फॉर्म करेगा, मतलब डर्मेटोजन आगे जाके डेवलप होगा इनटू एपिडर्मिस, ओके। तो आपको समझ में आ रहा है कि जैसे 4 टायर्स 4 जो था वो बेजल बेजल था, और नीचे वाला 4 टायर था दैट इज़ अ हाइपोबेजल था। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट उसमें से डेवलपमेंट होगा, और मल्टी सेल्यूलर है ये कंडीशन एम्ब्रियोनिक की। तो जो पेरीफेरी में जो सेल है जो बाउंड कर रहे हैं एक मेम्ब्री को, वो डर्मेटोजन से जो डेवलप होके एपिडर्मिस के अंदर। चलो, यहाँ पे ग्लोबुलर स्टेज के बाद दूसरा स्टेज है दैट इज़ अ हार्ट स्टेज और कॉर्डेड स्टेज। ऑलमोस्ट इट्स लुक इज लाइक अ हार्ट, सो द नेम इज लाइक वाइज, or here it is a fully developed cotyledon along with the embryo. So this is the shape, or this is the stage is known as the torpedo stage, okay. So by this means embryo is growing into the dicots. Here what is it is showing that कि इन ओरोबैंक, यूट्रिकुलेरिया एंड ऑर्किड के अंदर एपिकॉटिल, कॉटिलेडोन एंड प्यूम्यूल्स है वो हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, और इसका एपिकॉटिल, कॉटिलेडोन और प्यूम्यूल का जो डिफ्रेंशिएशन है वो एब्सेंट है, ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग। चलो, व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स। तो ये जो डाइकोट्स है दैट इज़ मीरोब्लास्टिक मतलब अनइक्वली डिवाइड होता है, एंडोस्कोपिक मतलब दे आर मूविंग द एम्ब्रियो टुवर्ड्स द एंडोस्पर्म एंड गेट द न्यूट्रिशन फ्रॉम दैट, ओके। एंड यहाँ पे जो मोनोकोट्स है उसका एम्ब्रियो हमें डिस्कस करना है। तो
दैट ऑल्सो इज़ अ मिरोब्लास्टिक, जाइगोट है वो अनइक्वली डिवाइड होता है, एंड दैट एम्ब्रियो इज़ ऑल्सो एंडोस्कोपिक। यहाँ पे दूसरा है कि जो सस्पेंसर के सेल्स है वो 6 to 10 सेल्स है, ट्रांसवर्सली डिवाइड होके बने हैं, और मोनोकोट्स का एम्ब्रियो है डाइकोट्स की कंपेरिजन में स्मॉल है, सो सस्पेंसर सेल इज़ ओनली अ वन। यहाँ पे हाइपोफाइसिस है इज़ प्रेजेंट, और यहाँ पे हाइपोफाइसिस है वो एब्सेंट है। माय डियर स्टूडेंट्स, हाइपोफाइसिस वो सस्पेंसर का लास्ट सेल है दैट इज़ रिमेन इन कांटेक्ट विद द एम्ब्रियो। ओके, एज यू नो माय डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो मोनोकोट्स है उसमें एंडोस्पर्म है वो परसिस्टेंट रहने वाला है, और उसमें से न्यूट्रिएंट है वो गेन करेगा जो ग्रोविंग डाइकोट्स और ग्रोविंग एम्ब्रियो होता है, दैट वन। ओके, in dicots there is a presence of two cotyledons, as you know, and in monocots it's only having a one cotyledon, and that is known as the scutellum. Here further showing that radical and plumules है जो perfect not protected, मतलब it's not having a epicotyl and hypocotyl like structures, and here these here in this one, this in cynodon ruminants of a dicots है जो जिसके पास सेकेंड कोटिलेडन्स इज प्रेजेंट होता है, and it is in the form of a epiblast, or it is known as the epiblast. जो साइनोडोन रुमिनेंट्स ऑफ डाइकोट्स है जिसके अंदर सेकेंड कोटिलेडोन इज प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं एपिब्लास्ट। ओके, चलो यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट है कि प्यूम्यूल है उसको प्रोटेक्ट करने वाला लेयर है वो सेलोप्टाइल होता है, एंड रेडिकल को कवर करने वाला प्रोटेक्ट करने वाला लेयर that is a coryza. Okay, here they are showing the structure wise difference between dicots and monocots. So they are showing a plumules, cotyledon, hypocotyl, radicals, and root cap. And here in a monocots it's showing a scutellum. Scutellum means it is a cotyledon of the monocots, and the radicals and plumule के protective layers respectively coleoptile and coryza है, shoot apex, एपीब्लास्ट है। एपीब्लास्ट इज यू नो क्या बोला एपीब्लास्ट के बारे में कि भाई सेकेंड कोटिलेडोन डाइकोट में जैसा होता है सेकेंड कोटिलेडोन, वैसा यहाँ पे रूमिनेंट मतलब रेसिडुअल फॉर्म में रहता है, जिसको हम लोगों ने एपीब्लास्ट बोला, और ये आपको दिख रहा है एपीब्लास्ट वो रूमिनेंट स्टेज के अंदर है। यहाँ तक का नोट्स आपको अच्छे से रिफ़र करके स्टूडेंट्स अपने नोटबुक के अंदर फेयर फॉर्म में बना देना है, अच्छे से रीड कर लेना है। एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियर इन दिस डायग्राम्स। ओके, यहाँ पे जैसे लिखा कि सिलोराइजा है दैट इज़ अनडिफरेंशिएटेड सिथ। ओके, सो राइट डाउन विद इन योर